بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ہوگی، کیونکہ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ دوران پرواز آپ کی فلائٹ کے ساتھ پاسبلی کیا واقعات پیش آ سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ میں نے اپنے 30 سالہ ایئر ٹریفک کنٹرول کیریئر میں دیکھا ہے اور ہینڈل کیا ہے۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو دوران پرواز پیش آنے کے باوجود پائلٹ آپ کو فار ویری obvious ریزنز نہیں بتائے گا۔ آپ کی پرواز ٹیک آف کرنے سے لے کر ڈیسٹینیشن پر لینڈ کرنے تک کس قسم کے خطرے سے دوچار ہو سکتی ہے، آج کی ویڈیو میں آپ کو ان میں سے چند خطرات سے بھی آگاہ کروں گا جو میری ڈیوٹی کے دوران میں پیش آئے۔ ایک فورن ایئر لائنز کے بوئنگ 747 نے اسلام آباد سے جدہ کے لیے ٹیک آف کیا۔ جب یہ جہاز اوور ہیڈ لاہور تھا تو اس وقت اسلام آباد سے ایک اطلاع لاہور ایئر ٹریفک کنٹرول کو موصول ہوئی۔ میں اس وقت لاہور کے ایئر ٹریفک کنٹرول میں ڈیوٹی کر رہا تھا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر کنٹرول سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق اس جہاز میں ایک پلانٹ کر دیا گیا تھا۔ میں کنٹروورشل ورڈز کی وجہ سے یہ لفظ ادا نہیں کرنا چاہتا، اس لیے ریڈ مائی لپس کہ اس جہاز میں ایک پلانٹ کیا گیا ہے۔ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کے تحت ایئر ٹریفک کنٹرول کو یہ اطلاع فوراً پائلٹ کو اور اس کے علاوہ بہت سی دوسری ایجنسیز کو دینی ہوتی ہے۔ ہم نے پائلٹ کو فوراً اس کی اطلاع دے دی۔ پائلٹ نے اپنی کمپنی سے مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ وہ کراچی جا کر لینڈ کریں گے۔ بعد میں جب فلائٹ کراچی لینڈ کر گئی اور جہاز کی سرچ کی گئی تو وہ چیز واقعی جہاز کے اندر سے مل گئی، اور دوران پرواز اس کے کا وقت تقریباً رحیم یار خان کے قریب بنتا تھا۔ لکیلی ایک تار کے اتر جانے کی وجہ سے جہاز محفوظ رہا۔ آپ خود سوچئے کہ اگر پائلٹ دوران پرواز یہ انفارمیشن پیسنجر کو دے دیتے تو کتنا پینک ہو جاتا۔ لاہور سے پشاور جانے والی پرواز کے ٹیک آف کرنے کے بعد رن وے انسپیکشن کرنے پر ہمیں نہ صرف مرے ہوئے پرندے رن وے کی لیفٹ سائڈ پر ملے بلکہ کچھ میٹل پارٹس بھی ملے۔ یہ انفارمیشن ہم نے فوراً پائلٹ کو دے دی۔ اس وقت تک پائلٹ کو لیفٹ انجن کے اندر ایب نارمل وائبریشنز محسوس ہونا شروع ہو چکی تھیں۔ یہ بوئنگ 737 تھا جس کے 2 انجنز ہوتے ہیں۔ وائبریشنز اتنی زیادہ بڑھ گئیں کہ پائلٹ کو یہ انجن شٹ ڈاؤن کرنا پڑا اور پشاور میں ایک انجن کے ساتھ ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی، لیکن پیسنجرز کو یہ بات معلوم نہیں تھی۔ دوران پرواز آپ نے اکثر یہ اناؤنسمنٹ سنی ہوگی کہ موسم کی خرابی کے باعث پرواز ناہموار ہو سکتی ہے، اس لیے آپ سیٹ بیلٹ باندھے رکھیں۔ موسم کی اس خرابی کو ایئر ٹربولنس کہتے ہیں۔ اگر تو یہ لائٹ ٹربولنس ہے تو جہاز ہلتا ہوا محسوس ہوگا، اور اگر یہ ہیوی ٹربولنس ہے تو پھر بہت زور کے جھٹکے لگنے کا بھی امکان ہے جو خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ تو وہ ٹربولنس ہے جو پیسنجرز کو محسوس ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور انتہائی خطرناک ایئر ٹربولنس ہے جسے کیٹ کہتے ہیں، CAT، کیٹ کلیئر ایئر ٹربولنس کہتے ہیں۔ جس جگہ تھنڈر سٹارم ہو کے گزرا ہو وہاں چھوٹے چھوٹے سیلز کے درمیان میں یہ ٹربولنس پائی جاتی ہے۔ اس وقت اگر کوئی فلائٹ ادھر سے گزرے اور اس لیول پہ اس میں پھنس جائے تو جہاز کو یہ ٹربولنس ملتی ہے۔ اس میں پھنس جانے والا جہاز ایک دم اپنی بلندی سے نیچے کی طرف پتھر کی طرح گرتا ہے۔ ایک ایسا ہی واقعہ میری ایک نائٹ ڈیوٹی کے درمیان میں پیش آیا جب لاہور سے پشاور جانے والی فلائٹ اس میں پھنس گئی، اور جب وہ اس میں سے نکلا تو اس نے مجھے بتایا کہ he has lost 6000 feet، وہ 6000 فٹ نیچے پتھر کی طرح گرا چند سیکنڈز کے اندر۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ آپ خود سوچئے کہ اگر کوئی پیسنجر اس وقت کیبن کے اندر کھڑا ہو یا کیبن کرو اس وقت کوئی چیز سرو کر رہے ہوں اور ایسی ٹربولنس پیش آ جائے تو پھر جو کھڑے ہوئے ہیں یا جنہوں نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی ہوئی ہے وہ جہاز کی چھت کے ساتھ جا کر لگیں گے، اور کیا کچھ ہوگا آپ گیس کر سکتے ہیں۔ دوران پرواز پائلٹ کو بھی کوئی میڈیکل ایمرجنسی پیش آ سکتی ہے، یا فار دیٹ میٹر اگر وہ بہت تھکا ہوا ہے تو وہ سو بھی سکتا ہے، اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر آپ کو اخباروں میں پڑھنے کو ملتا ہے کہ فلاں جہاز کا پائلٹ سوتا رہ گیا۔ تو ایسی صورت میں اللہ حافظ۔ یہ میں جوک نہیں کر رہا بلکہ حقیقت میں ایسا ہی ہوا جو بعد میں اخباروں میں پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلا۔ میری ڈیوٹی کے دوران یونائٹڈ نیشنز کے ایک جہاز کو لائٹننگ سٹرائک ہوئی، یعنی کہ اس پر آسمانی بجلی گری۔ یہ جہاز ناردرن ایریا کی طرف جا رہا تھا۔ اس لائٹننگ سٹرائک کے بعد جہاز کے نیویگیشن اور کمیونیکیشن اینٹیناز جل گئے اور وہ اپنا راستہ تلاش نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی ایئر ٹریفک کنٹرول کے ساتھ کوئی بھی بات کر سکتا تھا۔ یہ جہاز ڈرفٹ کرتا کرتا گم ہو گیا
उस वक्त रेडार भी नहीं था कि हम रेडार पे उस जहाज़ को ट्रेस कर सकते। कई घंटों के बाद हमें रहीम यार खान के एयरपोर्ट मैनेजर की कॉल आई कि उनके एयरपोर्ट पर एक यूनाइटेड नेशंस का जहाज़ इंतहाई बुरी हालत में आकर लैंड किया है। ये वो वक्त था जब तक हमें ये एहसास हो चुका था कि जहाज़ के अंदर मौजूद फ्यूल ख़त्म हो चुका होगा या ख़त्म होने वाला होगा, और ये वो वक्त था जब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर अभी तक जहाज़ फ्लाई कर रहा है तो इस वक्त वो कहीं भी क्रैश लैंडिंग करेगा। कहाँ ये जहाज़ मुजफ्फराबाद के नॉर्थ में, और अब कहाँ जाकर लैंड किया, रहीम यार खान में। हमने जब पायलट से स्टेटमेंट ली तो उसने बताया कि उसकी नेविगेशन और कम्युनिकेशन का इक्विपमेंट लाइटनिंग स्ट्राइक के बाद नाकारा हो चुका था और वो फ्लाई करता रहा ताकि कोई एयरपोर्ट नज़र आ जाए। जैसे ही उसे ये एयरपोर्ट नज़र आया वो यहाँ पर लैंड कर गया। दौरान परवाज़ जहाज़ को लाइटनिंग स्ट्राइक हो सकती है, यानी आसमानी बिजली इस जहाज़ पर गिर सकती है। अनटिल एंड अनलेस आप लाइटनिंग स्ट्राइक को अपनी विंडो में से होते हुए देख लें, नॉर्मली आपको ये महसूस नहीं होगी। थोड़ी सी वाइब्रेशन और थोड़ा सा बैंग सुनाई देगा, आपको पता नहीं चलेगा कि जहाज़ को लाइटनिंग स्ट्राइक हुई है। और पायलट ने तो आपको बताना नहीं है। जहाज़ में अगर किसी को शक भी हो जाए, जो क्रू को बुलाकर पूछेंगे कि भाई ये अभी क्या हुआ था, आप हमें बताएं, तो इस पर पायलट को बताना पड़ता है कि जहाज़ को लाइटनिंग स्ट्राइक हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का मॉडर्न एयरक्राफ्ट बहुत बेहतर डिज़ाइन के साथ और बेहतरीन मटेरियल के साथ बनाया जाता है जो लाइटनिंग स्ट्राइक को विथस्टैंड कर सकता है। फ़िक्र की कोई बात नहीं है। मॉडर्न जहाज़ इस लाइटनिंग स्ट्राइक को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। एयरक्राफ्ट का कोई भी इक्विपमेंट फेल हो सकता है जिसका डिस्प्ले कॉकपिट में होता है, और ये जहाज़ के लिए एक एबनॉर्मल सिचुएशन या इमरजेंसी क्रिएट कर सकता है। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके ख़राब हो जाने के बावजूद भी जहाज़ लैंड कर सकता है। मिसाल के तौर पर ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के रिसीवर्स। ऐसी सूरत में पायलट जहाज़ की नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से उसे एयरपोर्ट तक ले आएगा और फिर रनवे नज़र आने पर बआसानी उस पर रनवे को अपनी नज़र में रखते हुए लैंड कर जाएगा। पायलट को इसकी भरपूर ट्रेनिंग दी जाती है और अक्सर औकात वो प्रैक्टिस के लिए हमसे ये लैंडिंग भी रिक्वेस्ट करते हैं ताकि वो इन प्रैक्टिस रहें। एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया और उसका टायर बस्ट हो गया। हमने डिपार्चर्स के बाद रनवे इंस्पेक्शन कराई तो हमें रनवे के ऊपर से टायर के पीसेस मिले। एयर ट्रैफिक कंट्रोल का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये है कि इस सूरत में तमाम डिपार्चर्स को ये इंफॉर्मेशन दे दी जाती है जो इस टाइम पीरियड के अंदर हुए हैं। अब डेस्टिनेशन पर जहाज़ टायर बर्स्ट के साथ लैंड कर रहा है तो इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं। अगर इस तरह का जहाज़ बैडली डैमेज टायर्स के साथ लैंड करे तो इस चीज़ का इम्कान मौजूद रहता है कि लैंडिंग के बाद वो रनवे से उतर भी सकता है कच्चे में, जो यकीनन एक ख़तरनाक सूरत हाल होगी, ख़तरनाक पोजीशन होगी। और ऐसा ही एक दफ़ा हुआ भी, लेकिन चूँकि जहाज़ में लगे हुए टायर्स काफ़ी ज़्यादा तादाद में होते हैं तो 1, 2 या 3 टायरों के फट जाने की वजह से जहाज़ पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ता और प्रिकॉशंस के साथ जहाज़ स्लो स्पीड मेंटेन करते हुए टच डाउन करता है और बआसानी रनवे के ऊपर रुक जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। हाइड्रोलिक फेलियर की सूरत में जहाज़ व्हील्स डाउन नहीं कर पाया और जहाज़ ने बेली लैंडिंग की कोशिश की। मैंने अपनी ड्यूटी में 3 ऐसे वाक़यात अपने सामने होते हुए देखे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट मोमेंट के ऊपर आखिरी कोशिश पर व्हील्स डाउन हो गए और जहाज़ बहिफाजत लैंड कर गया अल्हम्दुलिल्लाह। कॉकपिट के अंदर लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक आलात में कभी कहीं स्पार्किंग हो जाए तो इससे कॉकपिट के अंदर धुआं भर सकता है। आप खुद सोचिए कि अगर ऐसा हो जाए तो पायलट इस वक्त इस कॉकपिट के अंदर बैठकर फ्लाइंग कैसे कर सकता है। सिविल एयरक्राफ्ट के अंदर नॉर्मली ये नहीं होता, लेकिन मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो कि वेरी हाई स्पीड मेंटेन करते हैं, अगर उसके कॉकपिट में ये बात हो जाए तो ये डेडली होती है। और मैंने इस तरह का एक जहाज़ अपने सामने क्रैश होते हुए देखा है। उसका पायलट बेल आउट कर गया था, उसका पायलट इजेक्ट कर गया था और सेफली पैराशूट की मदद से लैंड कर गया एक जगह के ऊपर और फिर उसको वहाँ से सर्च एंड रेस्क्यू एयरक्राफ्ट ने, हेलीकॉप्टर्स ने पिक कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपको एक इंतहाई अहम बात बताना चाहता हूँ। लैंडिंग से 2-2.5 मिनट पहले और टेक ऑफ के 2-3 मिनट बाद तक का टाइम एयरक्राफ्ट के लिए इंतहाई क्रूशल है, इंतहाई क्रिटिकल होता है। दुनिया में 95% हादसात इसी टाइम पीरियड के दौरान में होते हैं। इस वक्त हवाई जहाज़ का स्लो स्पीड होने की वजह से प्रोफाइल इतना क्रिटिकल होता है कि अगर कुछ भी गलत हो जाए तो रिकवर करने के चांसेस नहीं होते। आपकी फ़्लाइट का सबसे अहम वक्त
सेफ्टी की नुक्ता नज़र से यही है। आपने देखा होगा कि फ़्लाइट क्रू कॉशन भी करता है कि आप अपने लैपटॉप बंद कर दीजिए और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस वक्त हवाई जहाज़ अपने कंप्यूटर्स की मदद से फ़्लाई कर रहा होता है। आज का मॉडर्न जहाज़ बेशुमार सेंसर्स और कंप्यूटर्स की मदद से फ़्लाई करता है और इसमें किसी किस्म की इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस तबाहकुन साबित हो सकती है। तो ऐसे तमाम ख़वातीन और हज़रात जो अपनी अराइवल रिपोर्ट एयरक्राफ्ट के लैंड होने से पहले देना चाहते हैं, गुजारिश है कि अपनी और दूसरों की हिफाजत के मद्देनज़र ऐसा ना करें, जहाज़ को टच डाउन कर लेने दें। थंडरस्टॉर्म के बाद लैंडिंग के लिए आने वाले जहाज़ों को रनवे से कुछ पहले लो लेवल पर गैर मामूली विंड प्रोफाइल्स मिलते हैं। जब बदकिस्मती से भोजा एयरलाइन का जहाज़ इस्लामाबाद लैंड करने से 2 मिनट पहले ऐसी ही एक टर्बुलेंस में फंस कर क्रैश हो गया। आजकल के एयरक्राफ्ट इतने मॉडर्न हैं कि इनमें हिफाजत के लिए बहुत सारे सिस्टम्स मौजूद होते हैं और ये टर्बुलेंस वो पहले ही पिक कर लेते हैं और ऐसी जगह पे आने से अवॉइड करते हैं। किसी बड़े जहाज़ के पीछे अगर छोटा जहाज़ टेक ऑफ कर रहा हो तो इसके पीछे छोड़ी हुई टर्बुलेंस में आकर कोई दूसरा छोटा जहाज़ हादसे का शिकार हो सकता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के सेपरेशन स्टैंडर्ड्स हैं कि कौन से बड़े जहाज़ के कितने मिनट पीछे दूसरा कम वज़न वाला जहाज़ प्लेस किया जाना है या कितने फासले पर रखा जाएगा, ताकि वो इस टर्बुलेंस से महफूज रह सकें जो कि बड़े एयरक्राफ्ट ने अपने पीछे छोड़ी है। ऐसा ही एक हादसा लाहौर एयरपोर्ट पर पेश आया। एक बोइंग 747 टेक ऑफ करने के बाद फ्लाइंग क्लब का जहाज़ रनवे पर आया तो इस वेग टर्बुलेंस में फंस गया और वहीं उल्टा होकर रनवे पर इस तरह गिरा। ऐसा ही एक हादसा इस वक्त पेश आया जब एमिरेट्स एयरलाइन का एक एयरबस 380 जो कि क्रूजिंग फेस में था, उसके पीछे एक छोटा एग्जेक्टिव प्लेन नीचे लेवल से क्लाइम करता हुआ उसके नीचे वाले लेवल पे आया और इस एयरबस 380 की छोड़ी हुई टर्बुलेंस में फंस के बाकायदा इस तरह से रोल हुआ। आप खुद सोचिए कि उस जहाज़ के अंदर पैसेंजर्स का क्या बना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जहाज़ रिकवर कर गया और सेफली जाके एक जगह पे लैंड कर गया। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपका सफ़र बखैर हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।